So guys, 10 more seconds. Right, आपको पोल पे डालना है. That would be great. अगर others हो, आप student हो, homemaker हो, manager हो, advocate हो, accounting field से हो, I can see so many. Right. Okay. Quickly guys, quickly do it. Quickly. So मैं poll like end कर रहा हूं within 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. I would really appreciate all your answers. Now, आप जिस profession में भी हैं, आप लोगों ने already, you guys have told us. Now, I would really also love to know that what kind of problems, like, but yeah, what kind of problems you guys are facing. उसके लिए भी we guys have launched one particular poll. फटाफट आप अपनी problem यहाँ पे लिख सकते हो. Everyone, quickly write down your problem. Chats पे नहीं लिखना है. Poll जो हम लोगों ने आपको डाला है, right? You need to write. You need to basically type quickly, guys. Everyone, because until and unless you have no idea that what is your problem, and problem में ये मत लिखना कि मुझे इंग्लिश बोलना है, वो तो यहाँ पे सबको बोलना है. Everyone wants to speak here English only. The thing which you need to write, that because of English, because of the lackness of the English language, what you are not able to do. Like for example, engineer will say that मैं English नहीं बोल पाता, I'm not able to communicate in English. That's why I'm not able to speak confidently in meetings. So that becomes a problem. Problem को बहुत सोच समझ के लिखना. If you're a student, write it down like this way कि I am learning so that I can like enhance my personality, or I can like crack the interviews. So English ना आ जाने की वजह से, ना आने की वजह से आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, you need to write it down that. Quickly, everyone do it. And once this particular activity would, everyone quickly do it. I'm starting the music. फटाफट सब लोग करो. Quickly, guys, do it. And within 1 minute, we guys are going to start discussing about the solutions of these particular problems. Done? सबने कर लिया? You guys have 1 more minute. Quickly do it. And then we guys are going to start the most amazing session you guys have ever been part of in terms of English. Done? Everyone has typed it down? Sab log likho. Okay. So guys, within 20 seconds, I will end the poll. Quickly. 15 seconds. Because जब तक आपको आपकी problems ही नहीं पता है, there would be no logic that you will learn, or there is no logic that you will be able to, find the solution of your problem. You should first of all know, like ये सिर्फ मैं English नहीं बोल पा रहा, ये problem नहीं है, ये तो हालत है. बट उस हालत की वजह से एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है, लाइक क्या आप करना चाहते हो. राइट इट डाउन दैट कि यार मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा, लाइक अगर मैं एक मैनेजर हूं तो मैं टीम को लीड नहीं कर पा रहा, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. राइट. डन. एवरीवन डन. ओके. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The poll has been ended. So, how many of you guys are now excited to start this wonderful mega day 1 with me? So, we guys are starting. Just 1 minute to go. Here we go. Now, how many of you guys can see me, by the way? We guys are starting in the count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Okay. Here we go. Yeah. Am I clearly visible, guys? Let me know. All set. Clearly visible. Done. How many of you guys can see? All set. Ready for today? Great. Great. So, in 2023, you guys are going to become fluent in English. Everyone had this particular resolution, but आपको ऐसा पता है, like what's the reason that why you were not able to become fluent in English in the year 2023? Do you guys agree there was only one logic? Logic ये था कि ये तो पता था that we have to become fluent in English, but we have no idea that what should be my step number 1, 2, 3, and 4. How many of you guys can relate with it? Yes or no?
हाँ या ना, मुझे बताओ, यही तो रीजन है ना। पता तो है कि यार फ्लुएंट बनना है, पर ये नहीं पता कि कैसे बनना है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी गाइस विल बी वर्किंग अपॉन। एंड बिफोर वी बिगिन, आई वुड लव टू गिव माय क्विक इंट्रोडक्शन एंड देन वी गाइस आर गोइंग टू स्टार्ट। सब लोगों ने अपना नोटबुक एंड पेन निकालिए। एवरीवन क्विकली take out your pen and paper and make sure that no one is writing any irrelevant stuff on the chat box, because guys we will throw the people out जो लोग like chat box में थोड़ा chaos create करेंगे. So my little introduction would be, my name is Aman Maskeen and I am going to be your English fluency coach for not just these particular 2 days but even after these particular 2 days. And why English fluency coach? Because आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यार इंग्लिश पढ़ के थक चुके हैं बट इंग्लिश बोलना नहीं आया है? मुझे बताओ, how many of you guys are totally tired of learning, getting taught in English, but speaking in English is still a problem? So I am going to share the direct hacks that how come you can easily become fluent in English, and that's what exactly I will be that's exactly months. We have made more than 15,200 people fluent in English. And मैं आपको जितनी भी आज strategies बताऊंगा, जितनी भी चीजों के बारे में बताऊंगा, right, all those particular strategies have already been published by Josh Talk, Astak and all these particular news channels, right? So एक simple सी चीज ये है कि इन 2 या 3 दिन के इवेंट का मतलब क्या है भाई? लॉजिक क्या है? लॉजिक इज वेरी सिंपल, to make India fluent in English directly without wasting time on studying. तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो यार इंग्लिश को पढ़ना नहीं चाहते हैं, डायरेक्टली इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हैं? हाँ या ना? How many of you guys के फ्लुएंट होना चाहते हैं? That's exactly what we guys will be sharing. ये डिफरेंट इसलिए ही है because I can guarantee you this particular thing. So many of you guys have no idea about these particular concepts कि ये English शस्त्र क्या होता है. What are these particular concepts of brain and water, Taft principle, Who principle जैसे new 2024 के आपको advanced principles and concepts नहीं पता, and that's what my guarantee is कि यही reason है कि आपको अभी English में problem आ रही है. And these are going to be the exact points which we guys will be discussing. Now, these are going to be my certain pictures, like twice a Josh Talk speaker, Astak, India News, like, you know, my photo, like awarded by Malaika Arora and all that. But मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को, right, there is any logic, right, showing off my achievements, because अगर मैं इन 2 दिनों में आप लोगों को improve नहीं कर पाया, enhance नहीं कर पाया, there is not going to be any, like, my achievements are of no use. Start करें, bang to the point, चलो. सब लोगों ने अपनी नोटबुक एंड पेन निकाल लिया है. नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. ओके, सो इन दीज पर्टिकुलर 2 days द एजेंडा इज वेरी सिंपल, that we guys are going to cover 1 2 3 4 5 6 7 points these, and you know 1 2 3 like 5 6 cheezein. So we guys are going to cover the most important 11 things which you guys have no idea about in terms of your English language. Done? Easy? कोई दिक्कत तो नहीं है? Someone is saying I am not visible. Is it so? सबको मेरी वॉइस एंड लाइक वीडियो क्लियर है? राइट, समवन इज सेइंग मैं विजिबल नहीं हूं. इज इट सो? राइट, जस्ट गिव मी 1 क्विक मिनट, लेट मी चेक माय इंटरनेट कनेक्शन. हियर वी गो. थोड़ा सा बीच में अटकेगा. क्विक मिनट, इट विल बी फाइन. नाउ इट्स ऑल ओके. अब सही है? मुझे बताओ. आई हैव चेंज्ड माय इंटरनेट कनेक्शन. इट वाज एन इशू फ्रॉम आवर साइड, सो सॉरी फॉर दैट. डन? चलो. So guys, let's start with this amazing concept of 2024. First of all, I'll let you know, fluency is not what you think. आप लोगों को एज एन इंजीनियर ईमेल राइटिंग लिखनी है, राइट? यू नीड टू इम्प्रेस पीपल इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश. यू नीड टू बी अ कम्युनिकेशन कोच. यू वांट टू बी अ गुड ट्रेनर. बट वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा बिकॉज आपको फ्लुएंसी पता ही नहीं है होती क्या. फ्लुएंसी जस्ट बिना रुके इंग्लिश में बोलना, दैट्स नॉट फ्लुएंसी, right? That's not fluency. That's what we'll be discussing about. What should be your first step? यार मैं इंग्लिश में बहुत मेहनत करता हूँ पर मुझे यही नहीं पता कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है. what should be my current English level? I will let you know that आप लोगों का English level क्या है, and उसके according what exactly you guys need to do. Level oriented practice. We guys are going to do the live practice so that you can feel the results. There is one very big announcement which I need to make. आपको पिछले 20 साल में जो improvement feel नहीं हुआ, that's I promise you कि इन 2 दिनों में feel होगा. So 20 years of hard work of yours, and we guys are going to give you the better results in just 2 days. As simple as that. And ये जितने भी new concepts हैं उनको सीखेंगे, प्लस vocabulary को कैसे enhance करना in 10 minutes activity. I will going to train you that. And what is the fluency secret of actors and cricketers? यार आप लोगों को लगता है कि
एक्टर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, हाँ वो आप लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? फंक्शन हो जाओ नहीं, ऐसा तो नहीं है. But how is it so that they can speak and you guys can't? I'll share their secret. That is for sure. Now, once this particular thing would be done, how to start a sentence or a conversation? कितने लोग ऐसे हैं जिनको यार sentence start ही नहीं करना आता? Like once you have the environment of English around, like you guys start shivering in your brain. हाँ या ना? How many of you guys can relate with it? Yes or no? We guys will work upon that. How to finish speaking and writing with zero errors? कि यार मैं start तो कर देता हूँ, पर जब तक मैं खत्म कर दूं तब तक मैं 10 गलतियां कर चुका होता हूं. राइट, my brain is not operating. That's what we will be working now. Live practice to experience the quick fluency results, वो मैं आपको करवाऊंगा. एंड आपका डेली 45 मिनट्स के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? एंड इंग्लिश कोई ज्यादा बड़ी गेम भी नहीं है. इट्स जस्ट अ गेम ऑफ 7 to 8 वीक्स. उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से करना है, I will be working upon that. And also the people, those who will perform well in these particular 2 days, I will be selecting 250 people. We will be selecting 250 people, जिनको we will give them like 50% scholarship. That's the way it's going to be happening. Done? सबको एजेंडा समझ में आ गया? Start करें. Excited for the magic? चलो start करते हैं फटाफट. By the way, I don't need much time of yours. Quick 60 to 75 minutes. Today's session would be till 8:20 p.m. कल का जो सेशन है, इट वुड बी फ्रॉम 6:45 to 9 p.m. जितनी भी चीजें हम इन 2 दिनों में करेंगे ना, उन सबका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन डे 3 ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा. तो पहले सीखेंगे, क्योंकि अभी तक जब तक कुछ आता ही नहीं, तो व्हाट वी कैन प्रैक्टिस. ब्लाइंडली प्रैक्टिस नहीं करनी है. वी नीड टू डू द प्रैक्टिस विद लॉजिक्स, एंड दैट्स व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट. डन? स्टार्ट करें. चलो एवरीवन टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन. फटाफट सब लोग नोटबुक एंड पेन निकाल लिया? ठीक है, ग्रेट. नाउ the most important question is, in order to become fluent in English, what to do and how to do. What if I tell you that these particular 2 questions have no logic? यार क्या करना है, कैसे करना है, इन दोनों चीजों की कोई सेंस नहीं बनेगी जब तक आप लोगों को आपका लेवल ना पता हो. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी गाइस विल बी डूइंग. पहले हम अपने लेवल पे काम करेंगे, फिर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. दैट्स द वे गोइंग टू बी द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. चलो यार, अब हो क्या रहा है, कितने लोगों ने ये पीस ऑफ एडवाइस सुनी है कि अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है तो ज्यादा से ज्यादा बात करो एंड इंग्लिश में आप लोग फ्लुएंट हो जाओगे. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव हर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग? एंड होता क्या है कि व्हेन आई ट्राई टू स्पीक, राइट, वर्ड्स निकलते हैं बट इसी तरीके से, एंड आई हैव लॉट ऑफ फियर, हेजिटेशन, फंबल, क्लटर्ड माइंड. मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और मैं बिल्कुल स्टक हो जाता हूं. अब आपको कभी इसका लॉजिक पता है? जब ये सारी की सारी चीजें होती है ना, आप सब लोगों को सिर्फ एक ही चीज लगती है कि यार मेरी प्रैक्टिस में कमी है ना, मेरी प्रैक्टिस में कमी है, तभी ये मुझे सारी चीजें आ रही हैं. ऐसा नहीं है, राइट? प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता. रूल नंबर 1, इसको कहीं नोटबुक पे लिख लो आप. प्रैक्टिस इज यूजलेस इफ इट इज नॉट एज पर योर लेवल. हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें लेवल ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है. सो नाउ व्हाट हैपेंस, अब यार मैंने इंग्लिश बोलनी स्टार्ट की, मुझे बहुत ज्यादा फियर है, हेजिटेशन है, फंबल है, मेरा दिमाग हिलता है, मैं स्टक हो जाता हूं, और फिर मुझे लगता है कि मैं फ्लुएंट क्यों नहीं हो पा रहा. आपको पता है उसका रीजन क्या है? रीजन इज इन माय किचन. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू एंटर इनटू माय किचन? मैं अब आपको एक लॉजिक समझाता हूं, एंड वही ट्रांजिशन से वी गाइस विल स्टार्ट इनहैंसिंग यू, वी गाइस विल स्टार्ट इंप्रूविंग यू इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश. लॉजिक ये है, आप सब लोग मुझे लॉजिक के बारे में बताना. लाइक अभी इंग्लिश को थोड़ा हम साइड में रखते हैं. यार दिस इज द टैप, आई नीड वाटर. I opened this particular tap, the water came for 2 minutes. चलो सब लोग मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर दोगे? यार मैंने टैप को ओपन किया, the water came for 2 minutes and then it stopped coming. What could be the number 1 reason कि why water is not coming now? Let me know. What could be the number 1 reason why the water is not coming now? Okay, मनीष का सबसे पहला आंसर यह है, tank is empty. Right? What else? मुझे बताओ. empty tank, tap was closed. नहीं, tap तो खोली है, राइट, तभी तो 2 मिनट के लिए पानी आया है, राइट, ठीक है. समवन इज सेइंग पानी खत्म हो गया, राइट, पानी खत्म, राइट, ओके. नाउ दिस इज द एग्जैक्ट इमेज ऑफ योर ब्रेन. नाउ अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. ये आप लोगों का दिमाग है. व्हाट इज दिस टैप? दिस इज माउथ, दिस इज माउथ. एंड व्हाट इज दिस वाटर? This is your English language. And how many of you guys can relate with it? कि जितनी भी English आपके दिमाग में है, what this thing is all about? This thing is all about being correct in English. जितनी भी correct English की knowledge आपके दिमाग में है, उतना तो आप बोल लेते हो.
बट एज इंग्लिश के लाइक आपके दिमाग में करेक्ट इंग्लिश की नॉलेज है ही नहीं, दैट्स द ओनली रीजन why this particular water stopped coming. How many of you guys can relate with this particular example? हाँ या ना? How many of you guys can relate with this particular example? Because अगर मैं आप लोगों से पूछूं ना कि तुम में से कितने लोगों को इंग्लिश की समझ है, there would be very few. Because समझ तो है but वो इंस्टॉलमेंट्स में है, थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं है. And majorly people think that problem is here. Majorly people think the problem is here, but actually problem is not here. टैप खुला रखने से पानी नहीं आएगा. The first very common and obvious thing is we need to fill this particular water tank with the correct English. अपने दिमाग में थोड़ी सी correct English डालेंगे तब जाके इंग्लिश ढंग से निकलेगी. As simple as that. सबको लॉजिक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? How many of you guys can relate with it? This is the most important, like this is the most common problem which I feel. People are having the empty brain, like तुम लोगों का दिमाग अभी खाली है इंग्लिश में, पर बोलने का बहुत चाहत है. ऐसे नहीं होने वाला. पहले इसको फिल करते हैं, then we will proceed. Right? सबको ये चीज समझ में आ गई है. अब प्रॉब्लम बताए क्या है कि अब सब लोग अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना चाहते हैं. How many of you guys want to make your English correct? Almost everyone. यार अब ना मुझे इंग्लिश को करेक्ट तो करना है, पर प्रॉब्लम ये है कि बचपन से एक चीज, you know, there is one thing which have been following us since childhood, that is कि यार अगर हमें अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? लॉजिक समझना अभी, राइट? बिकॉज आप लोगों को पढ़ना नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज को, लॉजिक समझने एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन. प्रॉब्लम ये है कि हमें ये लगता है कि अगर मुझे मेरा ये दिमाग भरना है ना, तो दिमाग भरने के लिए विद द करेक्ट नॉलेज आई शुड बी लर्निंग ग्रामर. एंड इसी की वजह से हम लोग फ्लुएंट नहीं हो पा रहे. डू यू गाइस एग्री? कि हमें यही लगता है कि यार मुझे तो इंग्लिश आनी चाहिए. अब आने के लिए, इंग्लिश आने के लिए तो मेरा दिमाग भरा होना चाहिए ना. अब दिमाग भरने के लिए मुझे करेक्ट नॉलेज आनी चाहिए. एंड करेक्ट नॉलेज इज दिस: सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब्स के रूल्स. ये ग्रामर रूल्स आ जाते हैं, और मैं एक दिन याद करता हूँ, 2 दिन याद करता हूँ. अगर मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, इंजीनियर्स को लगता है यार मैं एक इंजीनियर हूँ, ये क्या मुझे चीजें याद की जा रही है, मैं बोर हो जाता हूँ, और विद इन 2 दिन के अंदर अंदर मेरी प्रैक्टिस छूट जाती है एंड इंग्लिश इज गॉन. How many of you guys can relate with it कि we are never able to understand grammar? कोई भी रूल कहीं भी उठ के आ जाता है, पता ही नहीं लगता has been का क्या सीन है, would have का क्या सीन है. What if I tell you that this is the wrong logic? ये लॉजिक इंग्लिश में मार्क्स लाने के लिए ठीक था. दिस लॉजिक वाज ग्रेट इन ऑर्डर टू गेट द गुड मार्क्स, बट इन ऑर्डर टू स्पीक वेल, इन ऑर्डर टू इंप्रेस वेल, in order to express your ideas well, we need direct fluency approach. Yes or no? How many of you guys are ready for direct fluency approach? अब ना direct fluency approach ना बहुत simple है, उसमें कोई rocket science ही नहीं है. Direct fluency approach. Now, how many of you guys want to master English language without grammar? That's what exactly you guys will be doing. करें, start करें. सबको समझ में आ गया? इंग्लिश चाहे अभी आप इसको माउथ मांगो या अपना हैंड्स मानो, इंग्लिश निकल इसलिए नहीं रही है क्योंकि दिमाग खाली है. और दिमाग खाली है ना, इसलिए कॉन्फिडेंस की कमी है. कॉन्फिडेंस तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक मुझे श्योरिटी नहीं होगी कि यार जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं लिख रहा हूं वो करेक्ट है. अब करेक्ट, अब नाउ द क्वेश्चन इज, राइट, नाउ द क्वेश्चन इज, यू गाइस एग्री? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा कि यार अमन हाउ टू बी करेक्ट. हाँ या ना? बात में दम है ना यार? नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है यार अब समझ में आ गया करेक्ट होने, तो हाउ टू बी करेक्ट. बट बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स हाउ वी कैन बी करेक्ट, आई वांट एवरीवन, सब लोग अपने नोटबुक एंड पेन निकाल लो, बिकॉज सिर्फ हमें हवा में आप लोग मेरा यहाँ पे भाषण सुनने नहीं आए हो. फटाफट क्विकली गाइस टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन and write down this very important logic, I1 logic, oh my g, I1 logic. That is going to be, फटाफट सब लोग लिखो. Biggest mistake: my brain is empty and I always try to speak. But इसका आंसर क्या होगा? First I will fill my brain with correct English, then I will open my mouth. And when I say open my mouth, मीटिंग में मुंह तब तक नहीं खुलेगा ढंग से जब तक मेरे दिमाग में श्योरिटी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है या गलत है. आप में से कितने लोग ऐसे होते हैं कि यार अमन आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम स्पीकिंग दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. मतलब क्या है? दिमाग खाली है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज. आया समझ में? डन. You guys can even take the screenshot or you guys can write down these particular way too much important points. पहला चीज समझ में आया, ब्रेन खाली है, ब्रेन को भरना है करेक्ट इंग्लिश से. अगर मैं खाली ब्रेन को लेके दुनिया भर में बोलता रहूंगा, it is going to be a total stupidity. Now, moving to the second point.
अब यार इंग्लिश में करेक्ट कैसे होना है यार? इंग्लिश में करेक्ट होने के लिए ना, आई डोंट थिंक सो यू नीड लाइक एनी लॉजिक्स, यू जस्ट नीड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात ये है, हाउ टू बी करेक्ट इन इंग्लिश, एनीथिंग यू वांट टू राइट एंड स्पीक, डू यू गाइस एग्री? कुछ भी इस लैंग्वेज में लिखना है ना, तो आपको सेंटेंस का स्टार्टिंग आनी चाहिए एंड फिनिशिंग आनी चाहिए, हाँ या ना? मुझे बताओ यस और नो। कितने लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार, आपको कुछ भी इंग्लिश में बोलना है, इफ टुडे आई एम एबल टू स्पीक, इफ टुडे आई एम एबल टू राइट, दैट इज बिकॉज मेरे दिमाग में कोई भी थॉट आता है, I know how come I can start that thought and I know how can I finish it with zero errors. Yes or no? और यही प्रॉब्लम है, आधे लोग स्टार्ट नहीं कर पाते, जो लोग स्टार्ट कर पाते हैं वो खत्म नहीं कर पाते विदाउट एरर्स। अब इसी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एंड ये जितनी भी ईमेल राइटिंग की प्रॉब्लम है, ड्राफ्टिंग की प्रॉब्लम है, मैं आई नोटिस दैट देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स, वो अपने स्टूडेंट्स के नोटबुक्स पे 2 लाइन नहीं लिख पा रहे हैं इंग्लिश की, उनके मन में तो बहुत कुछ है स्टूडेंट्स के बारे में लिखने के लिए, बट दे आर नॉट एबल टू राइट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर मदर्स हियर बाय द वे? कितने लोग मुझे बताओ मदर्स हैं? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर मदर्स? कितनी मदर्स इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि आप इंग्लिश ना आने की वजह से आप अपने बच्चों के एजुकेशन पे हेल्प नहीं कर पा रहे हो? यस और नो? कि उनके कोई सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको पढ़ा नहीं पा रहे हो, एंड इंग्लिश ना आ जाने की वजह से आपके बच्चे भी आपको लगता है कि क्या यार मम्मी आपको इंग्लिश नहीं आती, छोड़ो मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। यस और नो? यू गाइस एग्री? नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। अब हम समझते हैं कि यार किसी भी इस दुनिया के सेंटेंस को स्टार्ट या फिनिश करना है ना, तो उसके ट्रिक्स क्या होते हैं? यू आर जस्ट 1 or 2 ट्रिक्स अवे इन ऑर्डर टू मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज, एंड ट्रिक्स आर वेरी सिंपल। देखो यार, एक सिंपल सी बात है, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए, स्टार्ट फिनिश आना चाहिए। अब द क्वेश्चन इज स्टार्ट करते कैसे हैं? स्टार्ट करने के लिए यू शुड बी नोइंग द डी टेक्निक एंड द टाइम एंड सेंस की टेक्निक, वे टू मच इंपॉर्टेंट, एंड ये 2024 की लेटेस्ट टेक्निक्स होंगी। कितने लोगों को डी टेक्निक पता ही नहीं है कि ये क्या होती है? कितने लोगों को टाइम एंड सेंस का कंसेप्ट नहीं पता? मुझे बताओ, मुझे बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव नो आइडिया कि अरे डी टेक्निक क्या होती है, ये टाइम एंड सेंस क्या होता है? यस और नो? मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव नो आइडिया कि भाई ये क्या चीजें होती हैं? ओके, नाउ दीज आर द ओनली रीजंस कि आपको ये हैक्स नहीं पता ना, तभी आप लोग लिख नहीं पा रहे हो एंड बोल नहीं पा रहे हो। आज मैं आपको इन हैक्स की ही ट्रेनिंग दूंगा, यू गाइस आर गोइंग टू लव इट, राइट? सबको समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे दिमाग खाली है तो इसलिए करेक्ट होना है। करेक्ट होने के लिए क्या आना चाहिए? स्टार्ट एंड फिनिश आना चाहिए। स्टार्टिंग कैसे होती है किसी भी सेंटेंस की? बिगनिंग में while using the D technique and time and sense, and then the finish we have to do it from the formation sheets. If there is any sentence in Hindi or in any of your native language, with using these small 3 principles, within 2 seconds you can frame any damn sentence in English. Any damn sentence in English can be framed. How many of you guys would love to learn this particular technique? मुझे बताओ, हाँ या ना? कितने लोग इस चीज को जानना चाहते हैं कि वाह यार ये क्या होती है डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस, फॉर्मेशन शीट? ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, बिकॉज हमें हमेशा लगता था कि ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। ये आपकी पूरी की पूरी ग्रामर इज जस्ट 3 principles away. That's it. चैट्स को बंद कर दो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, ये 3 चीजें है ना, डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस एंड फॉर्मेशन शीट। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द लेजेंडरी डी टेक्निक। आप लोगों के राइट, यू गाइज आर गोइंग टू बी गेटिंग ब्लोन इन योर माइंड, आपका दिमाग हिलने वाला है। तो सबका फोकस टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर डी टेक्निक। यार डी टेक्निक इतनी सिंपल है, ये मैंने अपने मम्मी को भी सिखाई थी। मेरी मम्मी थ्रू आउट हिंदी मीडियम स्कूल से थी, मैंने उनको 10 मिनट के लिए सिखाई, और वो इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करने लगती हैं, एंड सही स्टार्ट करती हैं। कैसे? आई वुड लव टू ट्रेन यू। यानी ईमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो गाइस, सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डी टेक्निक। अब डी टेक्निक का मतलब क्या होता है? ये इस तरीके से दिखती है। डी टेक्निक का मतलब क्या होता है कि वी नीड टू ऑलवेज, कोई भी इस दुनिया का सेंटेंस आ जाए ना, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे के भी बताऊंगा, एंड सब लोगों का ध्यान टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। ओके, नाउ डी टेक्निक का मतलब क्या है? First of all, we need to look for the root sentence. Look, if I talk about your English language, there would be always the cases where you need to speak long sentences. कितने लोग ऐसे हैं जिनका पेन ही यही है, यार अमन मैं छोटे मोटे सेंटेंसेस तो बोल लेता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंसेस में बीच में अटक जाता हूँ। हाँ या ना? यही प्रॉब्लम है ना? अब प्रॉब्लम पता है ये क्यों है?
बिकॉज आप लोग सेंटेंस के रूट सेंटेंस को नहीं पकड़ पा रहे हो, एंड दैट्स द रीजन दैट व्हेन द सेंटेंस इज लॉन्ग, छोटे मोटे तो आप बोल लेते हो, कम हेयर, गो देयर, आई विल गो, आई विल कम, ऐसे नहीं, ये लॉन्ग सेंटेंसेस जो ईमेल्स में लिखने होते हैं, you guys are not able to write because आपको roots का sentence नहीं पता. Root is the जड़ of the sentence, मैं आपको बताता हूं. So D technique basically means this is D. Yes or no? ये D है. Now let's focus upon the sleeping D. कोई भी इस दुनिया का sentence आ जाए ना, आपको क्या करना है? You just have to go like this, right? And you just have to come back. This is the magic of English language which we have created. This is the magic. And आप ये देख पा रहे होंगे, it looks like a sleeping D. ये सोता हुआ D की तरह लगता है. अभी ये मैजिक का आपको वाव फैक्टर पता नहीं लग रहा. आई विल मेक यू सी. अब इसी टेक्निक की वजह से ना, यू कैन लुक फॉर द रूट सेंटेंस. कैसे? लिसन टू मी. फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग इंजीनियर्स हैं यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर इंजीनियर्स? इमेजिन करो, ये एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है जो आपको लिखना है. अब आप मेरी स्पीड देखना, हाउ आई विल बी राइटिंग इट अप विद यूजिंग वेरी कॉमन सेंस. ओके, मैंने मीटिंग के लिए एक नई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है. इमेजिन अ फैक्ट, ये वाला सेंटेंस मुझे इंग्लिश में लिखना नहीं आता. अब मुझे पता ही नहीं हाउ टू स्टार्ट, क्योंकि व्हाट वहीं लगती है. अब देखो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा व्हाइल यूजिंग द डी टेक्निक. डी टेक्निक का मतलब क्या था? वी जस्ट हैव टू गो लाइक दिस एंड कम बैक. नाउ, एंड डी टेक्निक आल्सो मींट रूट सेंटेंस. डू यू गाइस एग्री कि इफ आई सर्कल दिस, मैंने मीटिंग के लिए नई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है. इफ आई से मैंने प्रिपेयर की है, मैंने प्रिपेयर करी है, डू यू गाइस एग्री इट्स अ रूट ऑफ द सेंटेंस. अब मैंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है, मैंने पीपीटी प्रिपेयर की है, मैंने कोई सॉन्ग प्रिपेयर किया है, ये बीच में कुछ भी लिखा हुआ है, आई डोंट इवन केयर, बट डू यू गाइस एग्री कि मैंने प्रिपेयर करी है, दैट इज अ रूट ऑफ द सेंटेंस. यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? अब बीच में कुछ भी है, प्रेजेंटेशन के लिए, मीटिंग के लिए, ऑफिस के लिए, राइट, अपने बॉस के लिए, बट मैंने कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर करा है, राइट, मैंने प्रिपेयर करी है. नाउ लुक एट द मैजिक. आई विल स्टार्ट इवन राइटिंग द सेंटेंस नाउ. मैंने प्रिपेयर करी है, तो क्या आएगी? इंग्लिश वुड बी आई हैव. सबको दिख रहा है आराम से? ओके, लेट मी मेक इट. जस्ट गिव मी वन क्विक मिनट. आप समझना, दीज आर द हैक्स व्हिच यू गाइस नीड टू मास्टर. यही आपके पास, इसके लिए कोई ग्रामर नहीं पढ़ने की जरूरत है. आई, क्या होगा? आई हैव prepared, I have prepared, right? This is what we have written. I have prepared मतलब मैंने प्रिपेयर करी है. अब ये have कैसे आया? अभी उसकी टेंशन मत लेना, अभी लॉजिक समझो, लैंग्वेज का डीएनए समझो. I have prepared. Now, the magic of the D technique is, मैंने रूट सेंटेंस को सॉल्व कर दिया ना. Now the game is all sorted. I just need to now come back. How? मैंने प्रिपेयर की है, क्या लिखा हुआ है? एक नई प्रेजेंटेशन. एक नई प्रेजेंटेशन की इंग्लिश आपको ऑलरेडी पता है. सिंपली राइट a new, obviously a new presentation. You guys can see how I completed a long sentence. It's just a beginning. Beginners के लिए sentence is just a wow, right? I have prepared a new presentation. वापस देखो, मैं इधर गया, फिर मैं वापस आया, like जैसे था ना, इधर एंड वापस आना है. एक नई प्रेजेंटेशन मीटिंग के लिए. सिंपल. for the meeting, and boom, I have written the correct sentence. How many of you guys loved it? मजा आया? कुछ दिमाग हिला? Yes or no? How simple is it? समझ में आया? How many of you guys can relate with it? नहीं आया समझ में? I'll explain it one more time. Interesting. क्या इसके लिए आपको कोई rules regulations पढ़ने की जरूरत है? The answer is no. Once, because problem पता है क्या होती है? आप लोगों को यही नहीं पता होता भाई सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करें. Yes or no? यही नहीं पता होता कि सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करना है. As you have no idea, but do you guys agree कि रूट ऑफ द सेंटेंस से ना, एक बार ये रूट से ये पता लग जाता है कि ओ वाओ, अच्छा सेंटेंस इतना ही है, अच्छा बस इतना ही बोलना है, मैंने प्रिपेयर करी है, फिर वापस का जितना भी स्टफ बच गया, वी जस्ट हैव टू राइट इट डाउन इन द सीक्वेंस. वन मोर टाइम, आई विल रिपीट इट. ओके, चलो आप इसको समझना. देखो, मैंने मीटिंग के लिए एक नई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है. दिस इज द सेंटेंस. हाउ आई डिड इट? वेरी सिंपल. मैंने, अब आप देखना लॉजिक, मैंने प्रिपेयर करी है. सो ये मैंने सबसे पहला अपना रूट सेंटेंस सॉल्व किया. आई हैव प्रिपेयर्ड. डन. इतना समझ में आया? ब्लैक एंड ब्लैक समझ में आया? नाउ एक नई प्रेजेंटेशन, हियर वी गो. अब यहां पे मैंने लिख दिया अ न्यू प्रेजेंटेशन. Now let me change the color and I'll explain you. Right? Let me change the color and explain you. मीटिंग के लिए
for the meeting. The entire sentence has been covered. आप लोगों का एक पेन ये भी होता होगा कि when you start typing ना, start तो आप कर देते हो, पर आपको फिर ये समझ में नहीं आता a new presentation इधर लगाऊं, for the meeting इधर लगाऊं. But with this proper structure of the D technique, which shows you just need to ऐसे go like this and you just have to come back like this. With this proper structure, you can kill any kind of sentence at your will. आया समझ में? How many of you guys loved it? And don't worry about it. कुछ लोग कह रहे हैं ये have कैसे आया and all that. अभी उसकी टेंशन मत लो. लैंग्वेज के डीएनए को समझो पहले. ये बीच की बातें बाद में सीखेंगे. पहले डीएनए तो समझो. अब मुझे पता ही नहीं स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं have का क्या करूंगा? Don't worry about it. वो 2 मिनट का लॉजिक है, समझा दूंगा. समझ में आया? Now let's practice one more thing. You guys need other examples? Oh, I have so many examples. Look, this particular long sentence. And look at my speed, how quickly I'll be doing it. Right? सब लोगों को ये चीज समझ में आई है? अभी मैं आप लोगों को notes भी, like I'll ask you, देखो. राज सर and प्रिया मैम कल सुबह लंदन के लिए मेरे साथ फ्लाइट लेंगे. अब बहुत बड़ा सेंटेंस है, मैं बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा. I just have to write. Look, राज सर and प्रिया मैम फ्लाइट लेंगे. Do you guys agree? It's a complete D technique लगा दी मैंने. अब now I'll start even writing it ना. Raj sir and Priya ma'am will take flight. मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने D technique को लगाया. अब I just have to come back. Very simple. मेरे साथ की English would be with me. Wow. लंदन के लिए for लंदन, right? कल सुबह. You guys know that English यार. Tomorrow morning. Home. This is the way you write correct English. खत्म. Loved it. मजा आया? You guys understood the sequence of the language. अब तुम्हें यही बताओ, 25 साल से तुम लोग इंग्लिश सीख रहे हो and you guys have no idea about this. How come you will be able to become fluent in English? हुआ? तुम्हारे 20 साल को पीछे छोड़ दिया. How many of you guys felt that? wow moment आया? क्योंकि जब तक हमें टेक्निक्स नहीं पता, हम लोग वही ग्रामर रूल्स में उलझे हुए हैं. बाहर निकलो. गुड मॉर्निंग. दिस इज द वे. दिस इज गोइंग टू बी द वे. 2024 में इंडिया is going to master English. How many of you guys are ready? How many of you guys are ready to become fluent in the year 2024? One more sentence, it's awesome. अभी तो तुम देखना. आज what if I tell you कि आज तुम लोग ग्रामर में सही नहीं हो, मैं आपको बताऊंगा. आज मैं तुम्हारे ग्रामर की एक्चुअल प्रॉब्लम बता दूंगा और कल सोल्यूशन भी. इट्स गोइंग टू बी वाओ. एक और सेंटेंस करते हैं, देन वी गाइस आर गोइंग टू मूव अहेड. देखो, मैं तुम्हें जस्टिस देने के बाद रेस्ट लूंगा. मैं यू नो वी ट्रेन लॉट ऑफ एडवोकेट्स. कोई है यहाँ पे? राइट, कोई है एडवोकेट्स हैं यहाँ पे? लाइक तो मेरे पास ना बहुत सारे एडवोकेट्स आते हैं, बिकॉज आपको पता है लाइक लॉ फर्म में इंग्लिश इज द की. यस और नो? सो वहां पे ना उन्होंने कहा यार अमन, मैं वैसे तो कोई भी केस लड़ सकता हूँ, मुझे बहुत इंग्लिश आती है, पर कभी कभार ना लाइक टाइम अगर मिले तो मैं कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में लिख लेता हूँ, पर जल्दी से जल्दी अगर मुझे कोई सेंटेंस लिखना पड़े ना तो मैं नहीं लिख पाता. मैंने कहा अच्छा यार, अब एक एग्जांपल दो. तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया. मैं तुम्हें जस्टिस देने के बाद रेस्ट लूंगा. तो कह रहे मैं ना समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे लिखूं. मैंने कहा यार डी टेक्निक सिंपल लगाओ ना. मैं रेस्ट लूंगा. अब देखो, आई विल स्टार्ट राइटिंग. आई विल टेक रेस्ट. राइट, आई विल टेक रेस्ट. अब ये देखो, जस्टिस देने के बाद या फिर मैं रेस्ट लूंगा जस्टिस देने के बाद. लाइक आफ्टर, लाइक देने के बाद वुड बी, देने के बाद वुड बी आफ्टर गिविंग. अब जस्टिस को सॉल्व करते हैं. आप ये देखो ना, मैं रेस्ट लूंगा, आई विल टेक रेस्ट. देने के बाद, आफ्टर गिविंग, राइट. जस्टिस तो ठीक है, जस्टिस वर्ड लिख लेते हैं. इंग्लिश इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड यार. राइट, तुम्हें राइट. आफ्टर गिविंग जस्टिस टू यू. बस द सॉल्व. दिस इज द वे. डन. आया समझ में? मतलब गाइज, कितने लोग एग्री करेंगे कि इस टेक्निक से आ जाने से ना अब आप लोगों का खुद मन कर रहा होगा, अमन गिव मी मोर सेंटेंसेस, आई विल डू. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज कैन रिलेट विद इट? यस और नो? कितने लोगों को ये लग रहा होगा कि यार हाँ अमन मुझे देना. कितने लोगों को लग रहा है कि तुम्हारा वाटर टैंक भरने लग गया अब? हाँ या ना? पता लगा वाटर टैंक भरने का लॉजिक? पता लगा थोड़ा वाटर टैंक कितना हुआ क्या? मुझे बताओ.
वाटर टैंक कितना भरा? Yes or no? This portion has been done. How many of you guys now are excited to fill it completely? Yes or no? It's going to be so simple. Problem is not here. Problem is here. So इसको ही सॉल्व करते हैं, ये चीज अपने आप सॉल्व हो जाएगी. Yes or no? जिसको समझ में नहीं आया, don't worry. अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे. You guys will get the idea. But all in all, एक तो चीज, because there are so many things which we guys need to cover up in this entire workshop. मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता दूंगा. But कितने लोगों को डी टेक्निक समझ में आई है? How many of you guys have understood it? चलो अब नोट्स बनाओ quickly guys. And आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. This is what we have created it for you. कि मैं रवि सर के लिए एक नया लैपटॉप लाया हूं. मैं लाया हूं. I have brought एक नया लैपटॉप, a new laptop रवि सर के लिए for रवि सर. And ये तो अभी एक टेक्निक है. There are so many techniques via which you can easily master English language. लैंग्वेज में ग्रामर रूल्स नहीं पढ़ने, टेक्निक्स को फॉलो करना है. क्योंकि कितने लोग एग्री करते हैं कि तुम लोगों के पास पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं है, राइट? चलो मैं साइड हो जाता हूं. चलो चलो ले लो. इन द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एंड इवन व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट, चलो सब लोग नोट्स बना रहे हैं. एवरीवन इज मेकिंग नोट्स, राइट? थोड़ा दिमाग हिला. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव गॉटन दिस बूम आइडिया? वाओ यार, ये तो इतना इजी है, राइट? दिमाग हिला. चलो ये वाला लिख लो. टू मेक माई सेंटेंस करेक्ट, ये आप यू गाइस कैन टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 3 स्लाइड्स आल्सो. एवरीवन क्विकली टेक द, ये मैं नोट्स बना रहा हूं आपके. मुझे पता था कि तुम लोग खुद नहीं लिखोगे, तो नोट्स आर देयर. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज पर्टिकुलर नोट्स. फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को ये भी पता लगे कि अभी तक मैंने आपको 3 चीजें सिखा दी हैं. दैट इज व्हाट इट इज. एंड दैट बिकम्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे तो ये लगता है कि स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है लिखो उसको अपने हाथों से. Because screenshot लेके तुमने कुछ नहीं करना. The point is, if you guys are serious, write it down. It doesn't matter you're an engineer, homemaker, you are from the accounting field. Just make it happen. Done? No PDF नहीं मिलने वाली, तो हाथ से थोड़ी मेहनत कर लो. ठीक है? Done? आया समझ में? Now let's move forward. How many of you guys are enjoying it, by the way? How many of you guys are enjoying it? चलो. Now, guys, D technique तो समझ में आ गई है. But now let's understand the concept of time and sense. अब time and sense का concept समझने से पहले ना, ये हमें समझना पड़ेगा कि जरूरत क्या है. अब डी टेक्निक आ तो गई, अब जरूरत क्या है? नाउ कितने लोग ऐसे हैं ना, वो ये समझना चाहते हैं कि अमन मुझे टेक्निक समझ में आ गई है. दिस वाज द टेक्निक दैट अमन मुझे टेक्निक समझ में आ गई है. बट नाउ आई वुड लव टू नो कि यहाँ पे हैव क्यों आया. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू नो कि यार अमन यहाँ पे विल क्यों आया? आई वुड लव टू नो. यार यहाँ पे विल टेक क्यों आया? यहाँ पे आफ्टर गिविंग क्यों आया? नाउ हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू डाइव डीप? कितने लोग लाइक डाइव करना चाहते हैं? राइट? आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू नो कि यार अच्छा मुझे बताओ, डी टेक्निक तो समझ में आ गई है, पर ये चीजें लिखते कैसे हैं यार? पता लग गया कौन सी चीज कब लिखनी है, बट अब ना हर एक ब्लॉक की दिक्कत को दूर करते हैं. बिकॉज यू गाइस एग्री ना, ब्लॉक तो पता लग गया, दिस इज अ ब्लॉक नंबर 1, 2 एंड 3. बट अब ना इस ब्लॉक नंबर 1 के अंदर घुसते हैं कि ये आई हैव प्रिपेयर्ड क्यों आया. राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू नो दैट? डीप. चलो चैट्स को बंद रखते हैं, अब डीप चलते हैं. गाइस नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस दिस the most easiest concept, and I feel so bad कि जब मैं इंग्लिश टीचर्स को देखता हूँ हमारे इंडिया में स्कूल्स में, टीचर्स में, कि वो इंग्लिश को अभी भी उस वे से पढ़ा रहे हैं. आपको पता है इंग्लिश को ऑब्वियसली अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था एंड ऑल दैट स्टफ, तो जो मेथड्स वो छोड़ के गए थे ना, अभी तक हम वही पढ़ रहे हैं. हाउ बुलशिट इज दिस? यस और नो? जो अंग्रेज छोड़ गए हम वही या वही कोई एजुकेशन सिस्टम यू गाइस नो एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? बट नाउ द मैजिक सुनोगे? अच्छा तुम लोगों के पास, मुझे ऑनेस्टली बताना, कितने लोग इंग्लिश को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक इमेज है कि यार जो ग्रामर की बुक होती है वो इतनी मोटी होती है, एंड जब तक मैं ये ग्रामर रूल्स याद नहीं करूंगा आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक. मुझे बताओ कितने लोगों का ये लिमिटेड माइंडसेट है? हाँ या ना? दिक्कत है ना यार? ऐसा लगता है कि यार ये इतनी ग्रामर की बुक्स है, अब मुझे तो ग्रामेटिकली करेक्ट होना है. यस और नो? पर अगर मैं ये ग्रामर पढ़ूंगा नहीं तो मैं सही कैसे बोलूंगा?
आपको इस पर्टिकुलर माइंडसेट से बाहर निकलना है। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ यार। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस स्पीक हिंदी ओवर हियर? मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, सही हिंदी में बात कर रहा हूँ, राइट? बट डू यू गाइस एग्री कि हम लोग हिंदी में जो बात करते हैं, हम एक्चुअली कॉन्वर्सेशनल हिंदी यूज करते हैं। जो एक्चुअल व्याकरण वाली हिंदी है उसकी एक्चुअल समझ हम लोगों को नहीं है। हाँ या ना? यस और नो? कितने लोग एग्री करेंगे कि यार हिंदी की ना जो व्याकरण वाली नॉलेज है ना वो हमें नहीं है, पर फिर भी हम जिस तरीके से कॉन्वर्सेशनल हिंदी वी गाइस आर स्पीकिंग, दैट इज मोर देन इनफ। ऑफिस में भी अगर मुझे हिंदी में बात करनी होती है तो मैं ऐसे ही करता हूँ, हाँ थोड़ा सर, ओके सर, थोड़ा रिस्पेक्टफुल टोन आ जाती है, बट ये हिंदी मेरी वर्क करती है। सेम लॉजिक गोज विद इंग्लिश लैंग्वेज। प्रॉब्लम ये है कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज की ना व्याकरण में ज्यादा घुसते हो। वही रीजन है कि तुम्हें अपने अंदर डेली ग्रोथ फील नहीं होती। एज डेली ग्रोथ फील नहीं होती तो तुम गिव अप कर देते हो। Now, what if I tell you, do you guys want to see one magic? एक मैजिक देखोगे? मैजिक पता है क्या है? कि we researched over 4 to 5 years, right? 4 से 5 साल, because I've been training people in English for the past 7 years now. And in 7 सालों में कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ जहां पे मैंने इंग्लिश के ऊपर रिसर्च ना की हो, इंग्लिश के बारे में ना सोचा हो एंड ऑल दैट। तो पता है, मैं आपको एक सिंपल फंडा बताऊं, कितने लोग अपनी ग्रामर को बहुत ही जल्दी से जल्दी मास्टर करना चाहते हैं? मुझे बताओ, हाँ या ना? मुझे बताओ कितने लोग करना चाहते हैं? डी टेक्निक तो तुम्हें समझ में आ गई है। कितने लोग अपने ग्रामर को बिल्कुल फुल ऑन मास्टर करना चाहते हैं? यस और नो? मुझे बताओ। सब लोग, राइट? ऑलमोस्ट सब लोग। चैट्स को बंद कर दो। मैं व्हाट इफ आई टेल यू, आपको पता है, मैं आपको एक टेक्निक बताऊं। टेक्निक इज कि आप इस दुनिया का ग्रामर का कोई भी कंसेप्ट उठा लो, चाहे वो कोई भी कंसेप्ट है, आपको किसी भी कंसेप्ट को करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अब ग्रामर का कोई भी कंसेप्ट उठा लो, वो सारे के सारे कंसेप्ट, चाहे आप टेंसेस की बात करो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट की बात करो, एंड वो क्या होता है, नरेशन होती है, एक्टिव पैसिव, एक जो भी कंसेप्ट्स हैं, इन किसी भी कंसेप्ट्स को करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सारे के सारे कंसेप्ट्स सिर्फ दो ही कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, and that particular concept is time and sense. Because अगर आप लोगों की लैंग्वेज को लेके आप लोगों का टाइम एंड सेंस गलत है, इसलिए आपको लगता है कि आपको ग्रामर में इश्यू है। What if I tell you a person who has a great knowledge or a great understanding of time and sense, एक बार आपको टाइम एंड सेंस समझ में आ जाता है, उसके बाद आपको कोई ग्रामर रूल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये तुम्हारी तरह वो यूट्यूब पे रूल्स पढ़ रहे हैं? हाँ, कि वो टेंसेस पढ़ रहे हैं? नो, दैट्स नॉट द वे। बट स्टिल व्हेनेवर दे स्पीक, क्योंकि ग्रामर सीखने का मेन लॉजिक क्या है कि मैं सही बोलूं, तो आप सही विदाउट ग्रामर के भी बोल सकते हो। आपको पता है कैसे? जस्ट मेकिंग योर डी टेक्निक स्ट्रॉन्गर एंड अपना टाइम एंड सेंस स्ट्रॉन्ग करना। समझ में आई ये वाली चीज कि ग्रामर, अब आप इसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं लोगों से मिलता हूं, मैं कहता हूं कि यार आप क्यों नहीं सीख रहे? यार बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैं कहता हूं क्यों? कह रहे यार ग्रामर की इतनी बुक दे दी है मेरे इंस्टीट्यूट ने, मैं वही पढ़ता जा रहा हूं। दिस इज नॉट द वे। सबको ये चीज समझ में आई है, इसको लिखो फटाफट, सब लोग फटाफट लिखो ये जो मैंने 4th पॉइंट लिखा है। ग्रामर इज नथिंग, इंग्लिश इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड सेंस, एंड मैक्सिमम पीपल मेक मिस्टेक्स इन टाइम एंड सेंस। कभी आपने सोचा है? मैं अभी आपको बताऊंगा भी सही, बट क्विकली गाइस राइट इट डाउन। अभी आई विल गिविंग यू सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दीज, डोंट वरी। पहले थोड़ा समझो तो सही, एग्जांपल्स के पीछे ज्यादा मत भागो। आया? सबको समझ में आया? स्क्रीनशॉट टेकन, और इसको लिखो। स्क्रीनशॉट अगर लोगे, मैं एक वो करूं, लेट मी गिव यू वन फाइनल वार्निंग। जितने भी लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, वो इन स्क्रीनशॉट्स को अपनी जिंदगी में कभी पढ़ेंगे ही नहीं। तो स्क्रीनशॉट मत लो, क्या करो, इसको अपने नोटबुक पे लिखो, शायद थोड़ा आप लोगों को समझ में आए। मूविंग अहेड, चलो नाउ लेट्स क्विकली मूव अहेड। गाइस देखो, इन शॉर्ट बात पता है क्या है? इंग्लिश को सुधारना है, डी टेक्निक करो, टाइम एंड सेंस सुधारो। अब टाइम एंड सेंस को कैसे सुधारना है उसको समझते हैं। पहली चीज क्या है कि टाइम तुम्हें ऑलरेडी पता है। टाइम सबको पता है ना, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, राइट? ये पता है ना तुम्हें? मैं तुम्हारा छोटा सा टेस्ट लूंगा एंड देन विल डू इट। और सेंस क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूं। दिस इज द वे, राइट? चलो, इस दुनिया में बस यही कंसेप्ट्स हैं इंग्लिश को लेके। वंस यू मास्टर दिस, योर एंटायर ग्रामर इज ओके।
अब ना टाइम तुम्हें पता है कि पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, तुम्हें ऑलरेडी पता है। पर मुझे अब फटाफट बताओ, ये सेंटेंसेस हैं, इनका मुझे टाइम बताओ फटाफट। फटाफट टाइम बताओ एवरीवन क्विकली। फर्स्ट सेंटेंस, हम सब मिलकर ये एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे, इंग्लिश बात पे आएंगे, पहले टाइम। आई रियली वांट टू नो दैट वेदर यू गाइस आर ग्रेट इन टाइम और नॉट। पहला सेंटेंस क्या है, फटाफट बताओ। ग्रेट, फ्यूचर, आगे बढ़ते हैं। सर आप प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस को एक्सटेंड कर रहे थे। सेकंड सेंटेंस क्या है, एवरीवन क्विकली गिव मी द आंसर ऑफ द सेकंड सेंटेंस। फटाफट मुझे बताओ सेकंड सेंटेंस। मेक सेंस, फ्यूचर है, प्रेजेंट लग रहा है, मुझे बताओ। इट्स अ क्लियर केस ऑफ पास्ट, राइट, इट्स अ क्लियर केस ऑफ पास्ट। थर्ड सेंटेंस क्या है, उसने अभी अभी मुझे मेल भेजी है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ व्हाट, इट्स अ क्लियर केस ऑफ प्रेजेंट। प्रॉब्लम पता है क्या है, डू यू गाइस एग्री? आप में से कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि आपको बोलना था आई वॉज राइटिंग यू एन ईमेल, और आपके मुंह से निकल गया आई एम राइटिंग? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि बात करनी थी फ्यूचर की बट बात कर दी पास्ट की? ऐसा कभी हुआ है? और फिर आपने सोचा हो यार मेरी तो ग्रामर में मिस्टेक कर देता हूं। नो, गलती कहां हो रही है, टाइम की। आया समझ में? ग्रामर इज नॉट द इशू, टाइम एंड सेंस इज द इशू। समझ में आया? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं है? टाइम, व्हाट इफ आई टेल यू, जो टाइम होता है वो 90% लोगों का सही होता है। टाइम 90% लोगों का सही होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि इन क्वेश्चंस के मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिए होंगे। तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुम 20 साल से इंग्लिश सीख रहे हो थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं से, यूट्यूब से एंड ऑल दैट, तो तुम लोगों का टाइम ऑलमोस्ट सही है। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो टाइम तुम सब लोगों का सही है कि पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। दिक्कत होती है सेंस में, और ये 90% लोगों का गलत होता है। आई एम राइटिंग इट, 90% people have the wrong perception about the sense, and that's the only reason why you guys are wrong in English. Guys, आप इस चीज को समझना। अगर मैं आपके वाटर टैंक की बात करूं ना, इधर आओ everyone quickly come, मैं आपको बताता हूं इंग्लिश लैंग्वेज का किस तरीके से आपका वाटर टैंक फेल होता है। इधर देखो, राइट राइट, ये जो पर्टिकुलर, अब आप देखना कि दिस इज व्हाट, अब आप इस चीज को समझना इस तरीके से। अगर ये वाला वाटर टैंक आपके टाइम का कंसेप्ट है ना, तो ये सेंस का है। सेंस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। लोगों का टाइम सही होता है तो वो थोड़ा आई एम कर लेते हैं, बट सेंस में गलती करते हैं, इसलिए इंग्लिश नहीं निकल पाती। ये मेजर प्रॉब्लम है, और आज हम इसी को ही, आज या कल में हम अपनी सेंस को ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर ऊपर चीजें आती हैं। अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूं, मैं आपके वोकैब की बात करूं, दिस इज द इंटायर एरिया ऑफ योर ब्रेन, एंड फिर आती है आपकी सो कॉल्ड प्रैक्टिस। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यही करना चाहते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अरे पहले बेस सुधरता है, फिर प्रैक्टिस होती है। दिमाग खुल रहा है, धीरे धीरे सबका दिमाग खुल रहा है, लॉजिक समझ में आ रहे हैं कि व्हाट्स द फंडा, राइट। दिमाग में टाइम सबका सही होता है ऑलमोस्ट। चलो सेंस की बात करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। योर टाइम इज वे टू मच इंपॉर्टेंट, फटाफट आओ, राइट, ठीक है। इधर देखो, टाइम सबका सही है, नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट अपॉन सेंस। देखो गाइस, सबसे पहले वी विल वर्क अपॉन सेंस। ना 3 तरीके की होती है। सेंस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये सीखो। सेंस मतलब होता है कि आप किसी भी सेंटेंस को बोल के या सुन के व्हाट यू एग्जैक्टली फील। फीलिंग मतलब समझते हो? लेट्स सपोज यू गाइस आर लिसनिंग टू मी, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर फीलिंग एनर्जेटिक? मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर फीलिंग एनर्जेटिक मुझे सुनने के बाद? तो ये क्या हुआ, ये फीलिंग हुई ना। कुछ लोग बोर भी हो रहे होंगे, तो वो बोरिंग क्या हुआ, वो भी फील हुआ, राइट। पर बोर क्यों हो रहे हो? अगर बोर हो रहे हो तो छोड़ के जाओ। छोड़ के नहीं जा रहे क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है, तो ऐसे कैसे? हाँ राइट, whatever you guys are feeling, you guys are getting bored or you guys are getting wow feeling, क्या है वो? क्या वो एक फील है। फील मतलब एक वाइब है। तो हर सेंटेंस की फील इंग्लिश लैंग्वेज में 3 तरीके की फीलिंग होती है। द फर्स्ट फीलिंग इज, अब स्टार्टिंग में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्टिन्यूटी। कितने लोगों को कॉन्टिन्यूटी का मतलब पता है? वर्किंग प्रोफेशनल्स, आप लोगों को मैं नहीं समझाऊंगा, यू गाइस आर स्मार्ट इनफ। कॉन्टिन्यूटी का मतलब समथिंग इज नोन एज लगातार। फटाफट समझो यार, ये बहुत ही, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है तभी तुम इतना रो रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में। बेसिक्स क्लियर करो, आपको कॉन्फिडेंस आज से ही आने लग जाएगा, दैट्स माय गारंटी। और कल आओगे, कल तो यू गाइस हैव नो आइडिया व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। यू गाइस विल फील कि आप एक बहुत ही जीनियस एनवायरनमेंट में आए हो। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। देखो, सबसे पहले क्या चीज आती है, कॉन्टिन्यूटी को समझते हैं। कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार मींस समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर, राइट। आपको लगता है कि आप सेंस में, अच्छा, मैं अगर आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दूंगा, पता लगा लोगे कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है? चलो लगाओ, मुझे बताओ इन दोनों सेंटेंसेस में, चैट्स को ओपन कर दो,
क्या ये वाला सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी है? कॉन्टिन्यूटी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, सी डॉट 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 डॉट। मुझे फटाफट बताओ, पहला सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी है, ऐसे लिखो फर्स्ट यस। अच्छा पहला है क्या? एवरीवन पे कर दो, कोई बात नहीं, पहला है ओके, चलो ठीक है। सेकंड है क्या? सेकंड है, ध्यान से पढ़ो। यू गाइस वांट मी टू रिपीट? मैं आपको डायरेक्ट फ्लुएंसी की गाइडेंस दे रहा हूं। मैं कल अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। सेकंड है क्या? समवन इज सेइंग नहीं है, कोई कह रहा है बोथ है। देखा, हो गया ना कंफ्यूज्ड? आधा इंडिया कह रहा है नहीं है, आधा इंडिया कह रहा है। मतलब क्या हुआ? सेंस में दिक्कत है। देखो पकड़ी गई ना दिक्कत, आप खुद देख लो। आधे लोग कह रहे हैं नो, आधे लोग कह रहे हैं यस। मतलब क्या हुआ? अब आंसर दोनों तो सही होंगे नहीं। लोचा है ना? विल सॉल्व दिस लोचा। चैट्स को बंद करो। पहली चीज क्या है, अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, मैं कल अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। करेक्ट आंसर मैं बाद में बताऊंगा, पर पहले मुझे आप एक बात बताओ, जितने भी लोगों ने आंसर नो दिया है, कितने लोगों ने आंसर नो दिया है? कितने लोगों ने आंसर नो दिया कि यार ये नहीं है कॉन्टिन्यूटी? कितने लोगों ने नो दिया है? ग्रेट। आप लोगों को मेरी बात ध्यान से सुननी है। अगर मैं, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर सेंटेंस ये होता कि मैं अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा हूं, तो क्या ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी होता? मुझे बताओ, लेट मी नो। अगर ये सेंटेंस ये होता कि मैं अपने जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा हूं, तो क्या ये कंटिन्यू होता? या मैक्सिमम पीपल आर सेइंग यस, है ना, कि कंटिन्यूटी होता। पर मैंने फिर चेंज ही क्या किया, मैंने ये लिख दिया कि मैं कल जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। फिर आपने कह दिया कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कंटिन्यूटी है ही नहीं। इसका मतलब पता है क्या हुआ? अब समझना, इधर देखो। इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि तुम्हारे दिमाग में ना कंटिन्यूटी मतलब होता है कि जो चीज अभी हो रही है ना, वही कंटिन्यूटी है। हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यस और नो? तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, वही ना सेंस की दिक्कत है। देखो आ गई ना। और कंटिन्यूटी तो बहुत इजी होता है, वही दिक्कत है तो इंग्लिश तो गई। अब सीखो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को, एंड दिस इज द मिस्टेक जो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कर रहा है। वो पूरी डॉक्टरी कर चुका है, राइट? ही हैज डन, इवन एमबीबीएस पीपल आर मेकिंग दीज मिस्टेक्स। सो आप लोग तो फिर भी, यू गाइस आर वे टू मच अभी पीछे हो। हाँ या ना? अब आप समझो प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें पता है क्या लगता है? अरे वाह 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 वाह, कॉन्टिन्यूटी 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 मतलब लगातार। अब तुम्हें, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहली चीज लर्निंग पता है, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर, मैं कल अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था, यस। ये सेंटेंस भी कॉन्टिन्यूटी है और ये भी कॉन्टिन्यूटी है, दोनों सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूटी के हैं। तो जितने भी लोगों ने दोनों यस बोले हैं, यू गाइस आर राइट। पर जितने लोगों ने ये वाला आंसर नो बोला है, उनको मेरी एक बात समझनी है। पहला लॉजिक समझो एवरीवन क्विकली। ये दो लॉजिक्स है ना इंग्लिश के तुम्हारे, टाइम एंड सेंस। पहली चीज याद रखना, टाइम का एंड सेंस का कोई कनेक्शन नहीं होता। आया समझ में? रूल नंबर 1, इट्स वे टू मच इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। टाइम का एंड सेंस का कोई कनेक्शन नहीं होता, पर तुम्हारे दिमाग में वो कनेक्शन बैठा हुआ है। काटो उसको आज, इसको। आया? एवरीवन टेक आउट द सिजर, फटाफट निकालो सिजर, यही हाथों वाली निकाल लो, एंड कट इट डाउन। क्या कट इट डाउन? आप लोगों को ये लगता है, पता है आपके दिमाग में क्या है? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कॉन्टिन्यूटी का, किसी भी सेंस का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। सेंस अलग है, टाइम अलग है। कनेक्शन, इसको ब्रेक करो। लेट्स ब्रेक दिस पर्टिकुलर कनेक्शन। दिस थिंग शुड बी, ये ब्रेक करो, कनेक्शन ब्रेक करो पहले, ठीक है? नो कनेक्शन, ठीक है? कनेक्शन ब्रेक हुआ, ब्रेक इट, यहां पे लिख दो ब्रेक इट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा लॉजिक समझना, देखो आज मैं पानी पी रहा हूं, राइट? लेट मी ड्रिंक इट वाटर। वैसे भी राइट, तुम लोग तो पी रहे होंगे, मुझे तो पीने दो। अब अभी मैं पानी पी रहा हूं, द वाटर इज मूविंग, यस और नो? दिस इज द क्लियर केस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? गाइस, जिन लोगों ने नो आंसर लिखा था, कॉन्टिन्यूटी का है, ग्रेट। अब मान लो आप कल आते हो और मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं, हे राजीव भाई, आपको याद है मैं कल पानी पी रहा था? अरे एक्शन तो फिर भी कॉन्टिन्यूटी का हुआ ना, टाइम पास का हो गया, पर बॉटल तो फिर भी मूविंग थी ना। आया समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? कॉन्टिन्यूटी कैन बी ऑफ प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी ऑल्सो, पास की भी ऑल्सो, एंड फ्यूचर की भी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल 2011 वर्ल्ड कप, मैं
राजीव भाई आपको याद है यार क्या महेंद्र सिंह धोनी छक्के मार रहा था, ठीक है, पास किए तो क्या हो गया, मुझे कोई लेना देना नहीं। कॉन्टिन्यूटी इज कॉन्टिन्यूटी, चाहे वो पास की हो, प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? इस रीजन की वजह से ये गलती करते हो यार तुम लोग। पता है क्या होता है, मैं दिल से एक तुम्हें बात बताऊं, यू गाइस आर रेडी टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म योर इंग्लिश लैंग्वेज इन 2024। दिमाग खोल के सुनो, ये 6 कंसेप्ट्स हैं। टाइम तुम्हारा ऑलरेडी सही है, ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। ये 3 कंसेप्ट सुधारने हैं। Mark my words, you can become the master in terms of grammar in just 20 minutes. It's as simple as that. थोड़ा common sense लगानी है, जैसे हिंदी में लगाते हो वही लगानी है। As simple as that. अब क्या होता है, अब आप मेरी बात सुनना और आप मुझे लॉजिकल बताना। ये वाला सेंटेंस है, मैं कल अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। आप में से जिस किसी को भी ये लगता है कि ये कॉन्टिन्यूटी नहीं है, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना। अगर तुम्हें लगता है कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो तुम इंग्लिश सेंटेंस गलत बोलते, आया ना? How many of you guys can relate with it? Yes or no? How many of you guys can relate with it? जिस इंसान को ये सेंटेंस ही कॉन्टिन्यूटी का नहीं लग रहा, वो कोई और लॉजिक लगाता, वो कोई और दिमाग लगाता, और जब वो यहीं पे गलत हो गया, he can never become fluent in English. He can never become fluent in English. Even he will be a wrong speaker. And wrong speakers की कोई जगह नहीं है। तो में से हर कोई बोलना चाहता है या सही बोलना चाहता है? सही बोलना चाहता है। आया समझ में? Yes or no? दिमाग खुला ना? So both the cases are of what? Both the cases are of continuity. समझ में आया ना? Now let's move towards continuity। थोड़ा बहुत समझ में आया? Don't worry, अभी प्रैक्टिस करेंगे। अभी ऊपर ऊपर से बढ़ा रहा हूँ, फिर विल गो मोर डीप। अब कितने लोगों को मजा आ रहा है? पहले डी टेक्निक सीखी, फिर थोड़ा और डीप गए, टाइम एंड सेंस सीख रहे हैं, फिर और डीप जाएंगे, फॉर्मेशन शीट सीखेंगे, खत्म इंग्लिश। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। मजा आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एबल टू फील दैट पर्टिकुलर वाइब, कनेक्शन एंड दैट पर्टिकुलर फीलिंग की वाओ यार आज पहली बार कुछ समझ में आ रहा है? यस और नो? यू गाइस आर एबल टू कनेक्ट विद मी? सब लोग कर पा रहे हैं? आई लव यू गाइस, लेट्स फोकस मोर ऑन दैट। राइट, ठीक है, कंटिन्यूटी समझ में आया। नाउ अब ना कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको पढ़ो ना तो ऐसा लगता है काम खत्म हो गया यार, वही कंप्लीटेड होते हैं। कंप्लीटेड तो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। कंप्लीटेड, I am explaining you the second concept now, which is the clear case of completed. Completed basically means I read a sentence and I feel कि ये तो काम खत्म हो गया। For example, ये बहुत easy है, जैसे मैंने आपको मेल सेंड कर दी थी, किसकी फीलिंग आ रही है? काम खत्म हो गया यार, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, काम खत्म हो गया। तो दिस वुड बी द क्लियर केस ऑफ कंप्लीटेड। ये ऑलमोस्ट सब लोग सही जज कर लेते हैं। मैं YouTube पर स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस देखकर थक चुका हूं। कितने लोग हैं वैसे ऐसे जो ऐसे थक चुके हैं? मैं YouTube पर स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस देख के थक चुका हूं। राइट, तब थक चुका हूं ना। अब तो यू गाइस, व्हाट यू गाइस आर डूइंग राइट नाउ, दिस इज कॉन्टिन्यूटी। ये कॉन्टिन्यूटी है। और जो तुम YouTube पे वीडियोस देख के थक चुके हो, कंप्लीटेड हो गया ना वो, थक चुके हो। अब क्या? दिस इज द क्लियर केस ऑफ कंप्लीटेड एज वेल। देखा, सेंस समझ में आ रही है ना? अब जिस इंसान को ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी का लग रहा है, वो इंग्लिश में कभी भी फ्लुएंट नहीं हो पाएगा। देखा, जड़ पता लगी। फ्लुएंट होना है तो टाइम एंड सेंस इज द की। मैक्सिमम पीपल, इवन द इंजीनियर्स, होम मेकर्स, लॉयर्स, मैं जब उनकी इंग्लिश चेक करता हूं, जब वो बोलते हैं, 1 सेकंड में पता लग जाता है इस बंदे को सेंस की दिक्कत है, इस बंदे को टाइम की दिक्कत है। मैक्सिमम प्रॉब्लम सेंस की ही होती है, और डी टेक्निक भी लोगों को लगानी नहीं आती है। अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो कि मुझे ये नहीं आता, तभी इंप्रूव करोगे। आ रहा है ना समझ में? यस और नो? नाउ अब ना कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं गाइस जो ना मुझे कंप्लीटेड की फीलिंग देते हैं ना कॉन्टिन्यूटी के। तो जो सेंटेंसेस ना कंप्लीटेड है ना कॉन्टिन्यूटी है, ऑब्वियसली वो सिंपल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं विजय सर कंपनी के न्यूली प्रमोटेड टीम लीडर हैं। इट्स अ सिंपल सेंटेंस एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। काफी सारे लोग ना इसमें कंफ्यूज होते हैं सिंपल में एंड कंप्लीटेड में। ये डिफरेंस हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल, कि हाउ टू फिगर इट आउट कि सेंटेंस सिंपल है या कंप्लीटेड है। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी आसान होता है कि मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा, मैं मेल सेंड कर रहा हूं, मैं रोहन को पिक कर रहा हूं। कॉन्टिन्यूटी इज सिंपल, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब आप देखना, these 3 things are easy, right? Continuity is a medium concept, right? लोगों को, कुछ लोगों को आता है या नहीं आता। simple and completed, this is one of, I won't say tough है, but ये बहुत ही, this is the actual problem of the India। जितना मैंने स्टडी किया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की यही है।
ये आपको समझ में आना ये इजी है, ये मीडियम है, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सबको समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग, क्रिटिकल वुड बी द राइट वर्ड। सबको समझ में आ रहा है? रजत मेरी आवाज आ रही है? ओके ग्रेट, मुझे यहाँ पे आना बंद हो गई है, बट नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलो सबको ये चीज समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? इजी। नाउ लेट्स मूव अहेड लाइक अ गेम। अब व्हाट वी हैव डन फॉर यू, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब जैसे एक सेंटेंस है, मैं नाउ इट्स ऑल ओके, मैं इंटरनेशनल क्लाइंट से प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहा था। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट्स द टाइम, चलो फटाफट बताओ। ऑब्वियसली टाइम बताओ सब लोग, सबसे पहले टाइम बताओ। टाइम एक ही होगा, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, पास्ट है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ व्हाट? पास्ट। अब पास्ट में व्हाट वुड बी द सिनेरियो, राइट? क्योंकि अब आप मुझे बताओ सेंस क्या होगी। अब आपने इस सेंटेंस में ये तो जज कर लिया कि पास्ट है, अब सेंस जज करो। ये सेंटेंस सिंपल क्या है, कॉन्टिन्यूटी है, कंप्लीटेड क्या है? इट्स अ क्लियर केस ऑफ, एब्सोल्युटली इट्स अ क्लियर केस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वही वाला एग्जांपल करने जा रहा था, अब समझ में आया ना कॉन्टिन्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट है? इट्स अ क्लियर केस ऑफ दिस कॉन्टिन्यूटी। समझ में आया? यस और नो? थोड़ा पता लगा लॉजिक? क्योंकि जहां पे भी तुमने टाइम एंड सेंस में गलती की, द सेंटेंस वुड बी रॉन्ग। अभी हम लोग इनकी इंग्लिश बनाएंगे, डोंट वरी। इंग्लिश बनाने की ना जल्दी सब लोग करते हैं, पर वही बात है ना। इधर देखो, वाटर टैंक पे आओ, इधर देखो, इधर देखो। सब लोग ना एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, दे जस्ट वांट टू राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश क्विकली। उनको ये लगता है यार मैं फटाफट इंग्लिश बोल लूं, पर गाइस हैव पेशेंस। पहले टाइम सुधर जाए, सेंस सुधर जाए, फिर दो तीन चीजें और होती हैं। जब ये वाटर टैंक फिल हो जाएगा, फिर जिंदगी भर करते रहना इंग्लिश। लोग क्या करते हैं, आधी अधूरी नॉलेज इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। नॉट अ गुड आइडिया। कोई बात नहीं, समझ में आया? इजी। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लविंग इट? मजा आ रहा है? यस और नो? इजी, समझ में आया ना? नाउ व्हाट आई हैव डन फॉर यू, आज हमने दो चीजें पढ़ी हैं अभी तक। टी टेक्निक पढ़ा, वाटर टैंक प्रिंसिपल पढ़ा, एंड इवन टाइम एंड सेंस को पढ़ा। इस चीज को नोट डाउन करो फटाफट गाइस। टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन, बिकॉज दीज थिंग्स आर वे टू मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके पूरे लैंग्वेज के फंडे को ये सारी की सारी चीजें क्लियर करती है। एवरीवन क्विकली, हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव डिस्कस सो फार? आई नो यू गाइस आर लविंग इट, सो एम आई। फटाफट गाइस, सब लोगों का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे। केबीसी अब थोड़ा सा खेलते हैं, राइट? राइट, ओके, गिव मी अ मिनट। चलो, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार, इसका भी आप, you guys can draw it, like you guys can draw this particular thing on your paper, या फिर आप इसको लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये वाला, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। वैसे I7 भी हमने कवर अप कर लिया है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, all these particular 6 things what we have understood so far, it is way too much important, either you are a beginner or from the intermediate level, because अगर तुम्हारा फटाफट, biggest mistake, मेरा ब्रेन खाली है, मुझे इंग्लिश को करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए स्टार्ट आना चाहिए, फिनिश आना चाहिए। स्टार्ट के लिए डी टेक्निक, एंड ग्रामर क्या है, कॉम्बिनेशन है टाइम एंड सेंस का। और टाइम का मतलब होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सेंस का मतलब होता है सिंपल कंप्लीटेड कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेजेंट टाइम, इट ऑल्सो इंक्लूड्स पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। हुआ? रिवाइज हुआ? दिस इज व्हाट वी गाइस हैव डन। कोई दिक्कत तो नहीं? इजी? इजी, कोई इशू तो नहीं है? नाउ हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी टू प्ले अ गेम विद मी, राइट? And this thing is known as formations game, because guys आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज है। बट कितने लोग ऐसे हैं जो how many of you guys, and by the way अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, there are so many things which I need to explain you। अभी तो like it's going to be like, अभी तो अमेजिंग सेशन शुरू ही हुआ है, राइट? सो डी टेक्निक डन, टाइम एंड सेंस डन। एक बारी फॉर्मेशन शीट हो जाए, फिर हम इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे लाइव। इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप उठाना, हम इस मेथड से करेंगे ना, यू विल बी लाइक वाओ, how come it could be so simple, easy? It's going to be like that. But before we go on that level, कितने लोग चाहते हैं कि यार अमन, लेट्स ब्रिंग इट ऑन विद द प्रैक्टिस, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन शीट एज वेल। क्योंकि तुम्हें स्टार्ट करना तो आ गया थोड़ा बहुत, अब सेंटेंस को फिनिश करने का इज द रियल की। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू डू दैट? ओके, बट बिफोर वी डू, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे फ्यूचर सेशंस भी अटेंड करना चाहते हैं? लेट मी नो। अभी मैं सब क्लियर करूंगा, सेंस एंड ऑल दैट। अभी मुझे पता है मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं, बट हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू अटेंड मोर सेशंस? सो गाइस, वी विल बी टेकिंग हार्डली 1 or 2 minutes break, ठीक है? यू गाइस कैन ड्रिंक वाटर, यू गाइस कैन गो टू द वॉशरूम। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, पर उस ब्रेक में मैं कहीं नहीं जा रहा, आप लोगों के लिए, इफ यू गाइस वांट टू ड्रिंक वाटर एंड ऑल दैट, बिकॉज एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग 30 मिनट्स का सेशन अभी मैं स्टार्ट करूंगा।